Wow Foundation and the National Digital Library of India. They are our online partners. They are based out of IIT Kharagpur and Karwal Post family and the family of Usha. It's a great honor and privilege for all of us to have the Union Minister with us. As is customary, we request Shaurya India to present a bouquet. Tribes India wants to present you some of their items, so we'll do the needful and then we'll start the proceedings. Thanks. On the Tribes India. अभी 2 मिनट रुक के चलो। Great pleasure in welcoming Surekha Tangwal. Nobody will come. Okay, friends. Volunteers, please settle down. Come in front. Some members here. You can come in front. Let's all be comfortable. It's a nice informal gathering, and it's the Union Minister. Everyone knows that he's the Union Minister for Forests, Environment, Climate Change, Skill Development, Labour, and all these portfolios he holds. He's been a General Secretary of the Bharatiya Janata Party. He's been an Adhivakta. He's headed the Adhivakta cell of the BJP. When we were discussing with him, Lipika and I, about what kind of conversation would he like in Dehradun. So he suggested that I want a small, intimate conversation where people who have read the book or who are interested in reading the book, they are the ones who should come so that we have a nice, engaged dialogue. And it's in this context that we have invited people who regularly visit the cafe. And therefore, sir, it's a great honor and a privilege for us that you are here. And this is your first, but hopefully not your last engagement with Value of Words, because we are told that another book is in the offing. And the book is very, very readable. So I must say that it's a pleasure that we have you with us. Friends, I'm delighted to welcome Vice Chancellor Surekha Tangwal, very well-known academic and educational administrator. Most significantly, she's a member of the Uniform Civil Code, which the government of Uttarakhand has set up. And so she's toured, I think, the remotest parts of Uttarakhand and taken feedback from a whole range of people. So I think her experience is absolutely wonderful. More than that, she is a member of the WOW jury, and we also distinguished Jayanti Dimriji. So we have 2 jury members of WOW who are with us today, apart from a lot of our friends. She's also done something very remarkable. That is, we are changing the syllabus of MA English in the Doon University. We are trying to see how the perception of India has changed from 1900 to 1947, both in the eyes of the British authors and in the eyes of the Indian authors. So friends, therefore, what we'll do is that we have about an hour with us for the conversation and the book signing. So what we'll do is, I'll take about 7 to 8 minutes, and then I'll request the Honourable Minister to speak about his book, and then it'll be between Ms. Tangwal and the Honourable Minister, and we'll still have about 20 minutes for a question-answer session. The entire thing is being live streamed, and I'll request all of us who are viewing us that if they have some questions, they can email it to celebrate@wow, and we'll forward them to the Honourable Minister's office for his comments and queries. Very briefly, because one of the issues when you hold a mic is that you become a Tyson. So I'm the Mike Tyson for the moment. Before I hand over the mic, I'll just tell you 7 points about the book, because I want to tell the minister that I thoroughly read the book. Not that I'm retired now. He's not writing my AC or anything, but still, I want to let him know that I've read the book thoroughly. Now, the first thing is that this is not a book which is just about the rise of BJP. This is a book on the history of India, especially the history of the freedom movement,
how Mahatma Gandhi transformed the national movement from a small, close group of English-speaking, cloistered people to a mass movement. So that's the first point which comes out in this book. Today, the BJP is the world's largest political party. We are all aware of how strong this party is. The other point which I want to tell you is that this is the first party which used the word Bharatiya before itself. So the Bharatiya Jana Sangh and the Bharatiya Janata Party. The focus on Bharat, you know, the Indian National Congress, the Communist Party of India, the Communist Party of India Marxist versus the Bharatiya Janata Party or the Bharatiya Janasangh. Now it has a connotation which is far more. So India that is Bharat or Bharat that is India, it's something which struck me as something which is really remarkable. The other point which is made in this book is that Mahatma Gandhi wanted the Congress to be dissolved in 1947 because he felt that a movement which was there to win liberation from the British is very different from how you have to run the country. And I think that's a very significant point that he's made. He's also made the point, that in fact, when Shama Prasad Mukherjee set up the Bharatiya Janata Party, he was very clear that he is going to be in the opposition. And he said at that point of time that I want this party to be the principal opposition party. So from 1951, when the Bharatiya Janasangh thought that it will be the principal opposition party to a position where it is the lead party of the country. That's a remarkable journey and a remarkable story. So I think that's something which is fantastic. I'd also like to highlight with all of you that at various points of time, the Congress and the RSS have also worked together. They worked together in Hyderabad, they worked together in Jammu Kashmir, they worked together in Dadra and Nagar Haveli. Points which need to be known and acknowledged. There's a very interesting factoid, and that's about Rajmata Scindia. She first won elections on a Congress ticket in 1957. Then she stood for elections from the Swatantra Party as well as from the Janasangha. So she won both. But she renounced the seat from the Swatantra Party and continued as a legislator in the Bharatiya Janasangh. So it's a remarkable story. So one thing is that you never get bored with this book because there are so many interesting factoids which make this such a wonderful, wonderful story. Now, we are aware that, the BJP, the Bharatiya Janasangh was merged into the Janata Party, and then again after the failure of the Janata, experiment, again the party was resurrected on 6th April 1980 with Mr. Vajpayee as the president and Mr. Advani as the general secretary, and they came out with the Panch. They came out with the Panch Nishtha, which included nationalism and national integration, commitment to democracy and fundamental rights, Sarva Dharma Sambhava, the idea of positive secularism, Gandhian socialism, value-based politics, and as Vajpayee had said, remarkable lines, he had said at that point in the Bombay conference, Andhera chhatega, Suraj niklega, or Kamal khilega, or a Kamal khilta hi ja raha. So that's something which is really remarkable about this book. Another aspect which he has pointed out is the coalition dharma. And I think other than the Congress and the Communist parties, I think you've been in association with almost every other party in this country, including the MC. Even Communist Party. Okay, I stand corrected there. So even with Mamta Didi, they've had a coalition for some time. So this is a very remarkable aspect. Now the challenge is, you see that winning power is one thing. Staying on in power is another cup. And continuing to be in power and not get corrupted is yet another kettle of fish. So that's something that we look forward in your next. So with this, may I present with a round of applause, Shri Bhupendra Yadav. So you can read for some time and then Mr. Anwar will ask you some difficult questions. Hopefully some. Very second party.
Thank you very much. First of all, thank you very much. First of all, inviting me to this cafe. And Deepika ji told me about this cafe and your regular intellectual activity. So I suggested Deepika ji rather than we will organize a formal program, we will discuss informally now. And that's the reason I am here, and really the atmosphere and the participation and enthusiasm amongst you for the discussion about the book is encouraged me to write the other books also. जो विषय आपने कहा उनमें मैं सातों विषयों को देखना है। Book is not about the history of India, but it's a narrative of the democracy, journey of democracy. And the second thing, why Mahatma Gandhi said that Congress was the movement of Congress under the leadership of Gandhi was not only political movement, it was more than social movement. The seeds of this movement was started in 15th or 16th century because we found so many poets and reformers in 15th and 16th century. They came forward some basic issues of the society: caste discrimination, gender justice. Otherwise, Mirabai, Kabir, Nanak, Tulsi, Raidas, ये कोई अनायास नहीं था कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में इन लोगों ने रिफॉर्म्स की बातें की। और ये रिफॉर्म्स की बातें केवल सब जगह एक साथ हुई। नॉर्थ ईस्ट में देखें तो शंकर देव का आंदोलन था, साउथ में देखें तो हमारे अलावार कवि थे, कर्नाटक में देखें तो हमारे बसवराज जो लिंगायत धर्म की स्थापना करें, महाराष्ट्र में अगर देखें तो हमारे आनंदी के कवि और बाद में अब तो जो वारकरी की हमारी यात्रा निकलती है, और पुरुष और महिला दोनों। और उस रिफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा छुआ गांधी जी के मन में, और इसलिए आपने देखा होगा कि गांधी जी के मूवमेंट की प्रमुख हिस्सा केवल राजनीति में, ब्रिटिशर्स के सामने अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपना विजडम, ये सब गांधी जी ने हमारे अंदर इनकलकेट करना शुरू किया। और इसलिए जो कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में थी, वो कांग्रेस बहुत सारे राजनीतिक विचारों का एक अम्ब्रेला एसोसिएशन। अगर उस समय सोशलिस्ट पार्टी से आए हुए लोहिया भी कांग्रेस के पार्ट थे, तो जो पूंजीवादी विचार सोचने वाले राजगोपालाचारी जी भी गांधी जी के साथ थे, तो प्योर नेशनलिज्म की बातें करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस के साथ थे। और गांधी जी का दिल इतना बड़ा भी था कि जब बाबा साहब से गांधी जी की बातचीत भी हुई 1919 में, जो पूना पैक्ट हुआ, तो गांधी जी की बात ने बाबा साहब की बात को बड़ी सहृदयता से स्वीकार भी किया और देश को एक नए मुकाम पे पहुंचाने का रास्ता प्रशस्त किया। और इसलिए मुझे लगता है ऐसा विषय होगा कि सोशल मूवमेंट अपने तरीके से रिफॉर्म में चलता है, पॉलिटिकल लोग अलग अलग तरीके से अपने विचारों को लेकर आए। हमने हमारे देश में बाइपोलर सिस्टम की मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज और होनी भी चाहिए। 125 करोड़ लोगों के देश में 2 या 4 पार्टी हो, ये ठीक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होगी, मुझे नहीं लगता कोई नुकसान है।
होना चाहिए। डेमोक्रेसी में सबको आगे आना चाहिए, सबके विचारों का सम्मान होना चाहिए। उस यात्रा में जब देश में 1200 से ज्यादा पार्टियां बनी, एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने 3 मेंबर से लेकर के 303 की यात्रा कैसे की? और जो आपने 77 और 80 का जो उल्लेख किया कि जब देश की डेमोक्रेसी पे खतरा आया कि लगा कि डेमोक्रेसी के सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स ही छीन लिए हैं, तो बीजेपी ने एज ए पार्टी अपने आप को जनता पार्टी में मर्ज कर दिया कि पार्टी का अस्तित्व नहीं है, डेमोक्रेसी का अस्तित्व जरूरी है। लेकिन हम लोगों ने मर्ज करने के बाद बीजेपी ने जनता पार्टी को नहीं जोड़ा, बीजेपी के नेता जनता पार्टी में से आवाज उठी, और इसलिए आवाज उठने के बाद जब दोहरी सदस्यता की बात उठी और अटल जी को ये कहा गया कि आप अपने स्टेट्समैन हैं, आप छोड़िए इस आइडियोलॉजी को। हम ये मानते हैं कि हमारे जो आइडियोलॉजिकल वैल्यूज हैं वो मध्यकालीन कवियों के जो भारत के पुनर्जागरण के जो उन्होंने बीज बोए थे, उनसे शुरू होते हुए गांधी जी के स्वराज की यात्रा से जो राजनीतिक आजादी मिली, उसके अनुसार भारत बनाने के सपने को लेकर के हम चले, और हम इसलिए उस आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट में न कभी घबराए न कभी डरे। हमने उस आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के आधार पे नया दल बनाना स्वीकार किया, दोहरी सदस्यता की मांग को निरस्त किया। 67 में जब संवित सरकारें बनी थी, उस समय एक विषय ऊहापोह का था कि कांग्रेस को हटाने के लिए सभी दल एक है, तो उसमें कम्युनिस्ट भी भागीदार है, तो हम रहे या ना। और इसलिए इस पुस्तक में मैं अभी ढूंढ रहा था, वो एक जगह माधव जी और दिल्ली का समय द्वंद्व चला था, मेरे पुस्तक में लिखा, इसलिए मैं कह रहा था कि उस समय कांग्रेस रहे या नहीं रहे। लेकिन देश में एक अल्टरनेटिव राजनीतिक विषय तैयार करना, उस अल्टरनेटिव विषय को आगे बढ़ाना, और इसलिए 9 सालों में हम जिस पॉलिटिकल विचारों को लेकर चले कि 2 चीजों में कभी द्वंद्व नहीं होता, जैसे पर्यावरण और डेवलपमेंट, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। जैसे आज के विश्वविद्यालय न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हम इसके समन्वय से चल सकते हैं। उद्योग और मजदूर, ये कोई द्वंद्व का विषय नहीं है। हमारा जो पूरा ओवरऑल जो हमारा सोसाइटी का जो सोच है वो को एग्जिस्टेंस का है, क्योंकि जो भारतीय दर्शन परंपरा है वो संघर्ष से ज्यादा विमर्श में विश्वास करते हैं। तो हम कोई 2 लोगों के बीच में संघर्ष से पैदा हुए समाज से नहीं निकले हैं, हम लोग समाज के आपसी विमर्श से कंसेंसस पे पहुंचने वाली सोसाइटी है। तो हमारी सोसाइटी की जो मूल अवधारणा की बातें, जो जिसको हम स्वराज आंदोलन में मानते हैं, उनकी यात्रा इस पुस्तक में लिखने की कोशिश करी है। और ये कई बार लगता है कि 3 सदस्यों वाली जो पहली 1952 की जो जनसंघ की अवधारणा थी, और बनने के बाद उनके जनसंघ के अध्यक्ष ने अपना जीवन का बलिदान दे दिया, तो लोग कहते थे कि अब कौन आएगा। मौलीचंद शर्मा आए, लेकिन वो फिर छोड़ के चले गए। तब ढूंढने लगे कि ये तो सब नए लोग हैं, तो अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो भाई रघुवीर को बनाया गया, उस समय के बड़े स्कॉलर, उनका भी एक्सीडेंट में देहांत हो गया। फिर पार्टी में द्वंद्व भी आया, तो पार्टी में द्वंद्व आने के बाद उसका क्या समाधान हुआ, फिर जनता पार्टी में मर्ज हुए, फिर नई भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, और देश में जो मूल विषय थे, जिसको छद्म सेकुलरवाद कहते हैं, सूडो सेकुलरिज्म कहते हैं, उसको लेकर के जब देश में एक आइडियोलॉजिकल विषय और एक करप्शन फ्री गवर्नेंस की बात हुई, बोफोर्स आदि के कारण, तो देश में यात्राएं हुई। भारतीय जनता पार्टी जो 1984 में 2 सदस्य लेके आई थी, 89 में प्रमुख विपक्षी दल बनने की और अग्रसर हुई, 91 में वापस से पार्टी का आधार बढ़ा, और 96 आते आते पार्टी ने अपनी कोalition की सरकार बनाई। लेकिन उस सरकार में भी 2003-04 के उपचुनाव में हम कुछ कारणों से एक दूरी के कारण हम रहे, लेकिन बाद के 10 साल जो भारत ने देखे वो पॉलिसी पैरालिसिस से लेकर के और एक तरीके से
पार्लियामेंट से ऊपर एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल आ गई थी, तो उस दौर से भारत को निकाल के और 2014 तक भारतीय जनता पार्टी एक केंद्र की राजनीति की पार्टी बनी। हमने इसको लिखने का प्रयास किया। इतना ही मैं कहना चाहूँगा, बाकी तो आपकी बातों का जवाब Thank you so much, Bhupenji. It's a warm welcome from the belly of words, as I am also the part of it, being a member of the jury. आप हमारे बीच में हैं और लगभग आपने पूरी एक जर्नी की बात हमें बताई कि आई थिंक 1951 की 3 सीट से और आज 1919 में 303 सीट की जो यात्रा है, इसका जो शिफ्ट मैं देख पाई इस किताब में कि इसमें बीजेपी एन आइडिया ऑफ भारत थ्रू द लेंस ऑफ बीजेपी और इट्स आइडियोलॉजी और थ्रू द लेंस ऑफ जनसंघ। तो ये जो यात्रा थी इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका जो वोट शेयर है वो जनसंघ से लेकर और 1919 तक पूरा ऑन राइज है, बढ़ता ही गया। 2009 में थोड़ा था और उसके बाद ये बढ़ता गया। तो 2014 और 2019 तक एक पार्टी जो कि अपनी आइडियोलॉजी पे, जो आपने कहा कि वो बिल्कुल टिकी रही, और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उस समय का एक स्टैंड था, चाहे वो स्यूडो सेकुलरिज्म के लिए था, बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हुई नेहरू जी के साथ डिस्कशन में पार्लियामेंट में। तो ये एक जो शिफ्ट आपका स्यूडो सेकुलरिज्म टू सर्वधर्म संभाव, जैसा इस किताब में लिखा है, और एक ये दूसरा शिफ्ट जो आपने बताया संघर्ष से विमर्श तक का, और जो कन्फ्लिक्ट जो एक कम्युनिस्ट राजनीति का इंडिपेंडेंस के बाद से ही बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा, और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के साथ बिल्कुल मिली हुई थी, और विशेषकर जो संस्थान थे उनमें उनका बहुत बोलबाला था। तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट, मार्क्सिस्ट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, उससे दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानवता की जो थ्योरी उन्होंने दी कि हमारा कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। आपने बताया पर्यावरण से लेकर सब हमारा सर्वधर्म सब लोगों से संभाव है, उसमें जीव जंतु भी हैं, पर्यावरण भी है, पेड़ पौधे भी हैं और मानव भी है। फिर उसके बाद जो एक इशू आया 1990s के बाद और 89 में, जब एक प्रोमिनेंट पार्टी के रूप में दिखाई देने लगी भारतीय जनता पार्टी, और आपने कहा कि शेयरिंग में देश के लिए जब कुछ करना था तो कम्युनिस्ट भी उसके पार्टनर रहे। और 1962 के चाइना वॉर के बारे में लिखा गया कि नेहरू जी ने जब देखा कि इतना स्वयं सेवकों ने चाइना वॉर में पूरे समाज की हेल्प की और एक तरीके से देश के साथ खड़े होकर उस लड़ाई में हिस्सा लिया, तो उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन को देखते हुए रिपब्लिक परेड में उनको आमंत्रित किया गया। जिस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हमेशा सत्ता रही, भाजपा की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन की, हमेशा एक कन्फ्लिक्ट रहा कि कभी बैन कर देंगे, कभी इनवाइट कर देंगे, कभी कहेंगे कि आप देश के लिए बहुत सार्थक हैं, कभी कहेंगे देश का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया, ह्यूमन राइट खतरे में आ गए, सर्वधर्म संभाव की पॉलिसी खतरे में आ गई। उसके बावजूद भी एक बात आपके नैरेटिव में ये दिखाई दी मुझे इस पूरी किताब में, कि आपने वो फूल चुन के इसमें लिखे हैं जहाँ से ये लगा कि आइडियोलॉजी से नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ, जो वहाँ स्टैंड लिया था। जैसे आर्टिकल 44 पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नेहरू जी के साथ जो डिस्कशन है, वहाँ से लेकर आज तक उस पे है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, 370 और 35A के बाद वो दिखाई देता है वो शिफ्ट। लेकिन प्रश्न बस मेरा इतना है कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, अ पार्टी विद डिफरेंस, अ पार्टी हैविंग अ मॉरल स्टैंड, और उसने पूरे देश को एक कल्चरल कंपोजिट के रूप में, एक एंटिटी के रूप में देखा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटक से कटक तक पूरा भारत एक है, और उसकी आइडियोलॉजी में समाहित रहा। वो जो मॉरलिटी थी जो आडवाणी जी की दिखाई दी हवाला के बाद, कि मैंने कभी कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस नहीं हुए, और अब जब तक मैं फ्री नहीं हो जाता मैं पार्लियामेंट में नहीं बैठूंगा,
या अटल जी का जब एक वोट से और वो मैनिपुलेशन किया गया था और उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार चलाने से अच्छा मैं ऐसी राजनीति को चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूँगा। क्या ये जो मॉरल स्टैंड है बहुत ही हाई लेवल का, जो कि बीजेपी के राइज में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, ऐसा लोगों के बीच में देखने में आता है जब हम इस किताब को रीडिंग करते हैं स्टूडेंट के बीच में, युवाओं के बीच में, कि उसमें हल्का सा एक डाइल्यूशन दिखाई देता है उस स्टैंड में आज के परिवेश। दो विषय हैं। पहला तो आइडियोलॉजिकली हमारा और कांग्रेस का स्टैंड अलग रहा, लेकिन एक कोalition में साथ में संयोग से, मतलब एक परिस्थिति में, क्योंकि कांग्रेस को उस समय सब दलों के आने के लिए समर्थन की जरूरत है। हमारा आइडियोलॉजिकल स्टैंड हमेशा से अलग है। लेकिन जो मूल विषय आपने पूछा है कि पार्टी विद डिफरेंस के साथ जिस पार्टी को हम बढ़ाने की बात करते हैं, कहीं जिस आइडियोलॉजिकल विषय को लेकर चले हैं आज की परिस्थिति में उसमें कोई डाइल्यूशन तो नहीं है, या जो सोचा था उससे हम कहीं अलग तो नहीं हो। मुझे लगता है ऐसा नहीं। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी त्रासदी रही है वो ये है कि चाहे पार्टियां सोशलिस्ट मूवमेंट से निकली हो, चाहे पार्टियां कोई विरासत से निकली हो, अल्टीमेटली वो पार्टियां जाकर पारिवारिक कंपनियों में तब्दील हो। वरना लोहिया जी के जो पॉलिटिकल विचार हैं, मैं नहीं मानता हूँ कि भारत की राजनीति में इतने सुंदर विचार जितने कम पॉलिटिशियन में रखे उन्होंने लोहिया पर, जो अपने आप को लोहियावादी कहते थे, तो उन्होंने आज अपना परिवार का ब्रांड पार्टी को बनाया। इवन जो कांग्रेस भी है वो आज एक परिवार की पार्टी के रूप में है। जो पार्टियां हमारे बिल्कुल विरोध में, लेकिन जो बहुत क्षेत्रीय दलों से भी आइडियोलॉजिकल स्टैंड लेकर के आई, जैसे डीएमके निकल के आई, वो भी पारिवारिक पार्टी। कुछ पार्टियां समय के हिसाब से समाप्त भी हुई, जैसे एक समय आसाम के छात्र आंदोलन से आसाम गण परिषद निकल के आई थी और बाद में आसाम गण परिषद समाप्त हो गई। या चौधरी साहब कांग्रेस से निकले, उन्होंने लोकदल बनाया, बाद में लोकदल पूरी तरीके से समाप्त हो गया। या कभी जनता पार्टी निकली तो लोगों ने जनता पार्टी का सिंबल अपने घर में रख लिया, पार्टी खत्म कर दी। तो इस तरह के भी विषय रहे हैं। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी जिन वैल्यूज और प्लान्स को लेकर चली थी वो उस पर आगे है, निश्चित रूप से है। कारण पार्टी ने अपने आप को किसी परिवार के साथ तब्दील नहीं किया। पार्टी ने अपने डिसीजन लेने की प्रोसेस में पार्लियामेंट्री बोर्ड को रखा। मैंने इस पुस्तक में लिखा है एक जगह कि प्रधानमंत्री जी कोई भी डिसीजन जो पार्टी का होता है उसके लिए हमेशा पार्टी कार्यालय पहुँचते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है, वरना वो तो अपने घर पे भी पार्टी की मीटिंग बुला सकते हैं। ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि भाई उनको पॉलिटिकल पार्टी अपने एक स्वतंत्र अस्तित्व के साथ चलती है। पार्टी ने एक परिवार के दो व्यक्तियों की टिकट देने पर पाबंदी लगाई। पार्टी ने तय किया कि 75 साल के हो गए तो अब नए लोगों को अवसर दीजिए। पार्टी ने लगातार एक अपने प्रशिक्षण के विषय को शुरू किया। आम व्यक्ति पार्टी के साथ सम्मिलित हो, इसके लिए पार्टी ने अपने डिजिटलाइजेशन बोर्ड को शुरू किया। आम व्यक्ति से संपर्क हो, इसके लिए पार्टी ने अपना एक एक्टिव प्रोग्राम शुरू किया। और अगर कोविड का समय है तो ऐसे समय में किसी पॉलिटिकल पार्टी को आंदोलन, धरने, प्रदर्शन बंद करके लोगों के राहत के लिए काम करना चाहिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेवा का माध्यम बनाना चाहिए। ये जो रिफॉर्मेटिव तरीके और परिस्थितियों के हिसाब से जो चलने का मादा भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का डाइल्यूशन किया है। हाँ, कुछ प्रोसेस में कुछ लोग अच्छे बुरे हो सकते हैं, तो वो व्यक्तिगत होता है, लेकिन अगर पूरे पार्टी का विचार देखा जाए तो मुझे लगता है पार्टी जिस विषयों को लेकर के चली थी उसी को 2014 जब बहुत ही प्रोमिनेंटली बीजेपी ने अपने को भारत में स्थापित किया और एक ऐसी उसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष जिसके हम लोग चर्चा कर रहे हैं 1951 से 2014 तक, फिर भी एक जिज्ञासा जिन लोगों को राजनीति में उतना इंटरेस्ट नहीं है या बीजेपी का बैकग्राउंड उन्हें उतना पता नहीं है, मैं जानना चाहूँगी कि 2014 आपने कुछ इंसिडेंट का इसमें जिक्र किया है जिसमें आपने एंटी करप्शन मूवमेंट और जो कांग्रेस के करप्शन के किस्से बिल्कुल पूरे भारत में आम हो गए थे, और अन्ना हजारे जी का मूवमेंट और फिर रामदेव जी का मूवमेंट और फिर
2013 में उसकी हैंडलिंग कांग्रेस की ओर से, ये उसका एक रीज़न था, या जो इंटरनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के रूप में यूपीए की हेड के नाते 10 जनपद से होती थी, जिसमें कि राहुल गांधी जी का वो चेहरा भी लोगों ने देखा जब रिप्रेजेंटेशन एक्ट, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का आपने जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद यूपीए गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाती है और राहुल गांधी अजय माकन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि उसके फेवर में हो रही थी, वहाँ पे आके अचानक से उसको फाड़ देते हैं, और वो इंटरनल जो कोऑर्डिनेशन की लैक ऑफ इंटरनल कोऑर्डिनेशन दिखाया गया, उसने एक तरह से लोगों को, वैसे भी उनका पूरा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी, बहुत सारे ऐसे स्पेस थे या जो भारतीय जनता पार्टी का एक मॉरल स्टैंड, जिसको मैं बार बार रिपीट करना चाहूँगी कि उससे बहुत राइज बीजेपी को मिला था सिंस इंसेप्शन, वो एक कारण, या कल्चरल जो एक स्यूडो सेक्युलरिज्म कांग्रेस का था कि प्रधानमंत्री आवास में या सरकारी भवनों में आप रोज़ा इफ्तियार तो मना सकते हैं, लेकिन आप किसी हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं कर सकते, और उसका सार्वजनिक आपको नहीं दिखाना है, या प्रधानमंत्री किसी मंदिर में नहीं जा सकते, वो चादर चढ़ा सकते, ये सारे कलेक्टिव थे, या मेजर कोई ऐसा इंसिडेंट था करप्शन का जिसके कारण 2014 में या लीडरशिप बिल्कुल क्लियर थी कि 2013 में गोवा में ये तय किया गया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी बीजेपी को लीड करेंगे, तो एक डिसाइसिव फैक्टर था कि यू हैव ए फेस, a very strong face, a very clear as far as governance is concerned, और उनका बहुत बड़ा कार्यकाल एज ए चीफ मिनिस्टर गुजरात में, और गुजरात का सक्सेस मॉडल, इट्स ऑल कलेक्टिव और टू सम मेजर इंसिडेंट लेड टू बीजेपी इन 2014। 2014 में लोग ये समझ गए थे कि भारत को अगर मजबूत बनाना है तो मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। सबसे बड़ा विषय, अगर आप 2014 को देखेंगे तो हर महीने कोई ना कोई मंत्री के ऊपर केस बनता था और जेल में जाता। ये राजा मंत्री थे, अंदर गए, पवन बंसल मंत्री थे, आरोप लगे, और ये एक सामान्य घटनाक्रम बन गया था कि सरकार के मंत्री सरकार से बेकाबू हो गए। दूसरा, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को अगर एक पार्टी का सांसद आकर के अपनी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बिल को फाड़ता है, तो कोई एमपी फाड़े तो उसको सजा होगी, पर राजकुमार फाड़े तो सरकार मानेगी। तो हम कैसे मोनार्क सिस्टम में, तो मोनार्क ही था, वरना कोई पार्टी का सांसद फाड़ दे तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन पार्टी ने स्वीकार किया क्योंकि पार्टी के राजकुमार का आदेश था। तो लोगों को लग गया था कि भाई ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं एक राज परिवार की सत्ता, जो अकाउंटेबल नहीं होना चाहते, जो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, लेकिन राज चलता है हमारे इशारे पे, ये मैसेज करना चाहते। तीसरा, हिंदुस्तान की जनता इतनी समझदार है कि वो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और कभी भारत के इतिहास का विश्लेषण होगा तो यूपीए सरकार का काम सबसे ज्यादा भ्रष्ट कार्यकाल में से एक रहा। कैग की रिपोर्ट को आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ साथ लोगों के आंदोलन को देखिए, लोगों के एस्पिरेशन को देखिए, संसद में चलने वाली बहस को देखिए, सब जगह आपको दिखेगा। इवन मनरेगा जैसी योजना जो कांग्रेस लाई थी, उन्हीं के समय की अगर पार्लियामेंट की उनकी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पूरा पढ़ेंगे, कैग की रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि उन्होंने किस प्रकार से योजना को चलाया। और 2014 के बाद अगर 2019 में वापिस से भारतीय जनता पार्टी ज्यादा 3-4 करोड़ वोट लेकर के आई, तो उसके सबसे बड़ा जो कारण है ट्रांसपेरेंसी, लास्ट माइल डिलीवरी और टारगेटेड डिलीवरी। 2014 में अगर प्रधानमंत्री जी मन से ये कहते हैं कि हम सभी गांव में बिजली पहुंचाएंगे, तो 2019 में पहुंच गई। सरकार ने लक्ष्य तय किया कि हम 10 करोड़ उज्ज्वला के कनेक्शन देंगे, तो 19 में उज्ज्वला 2 भी शुरू हो गई। सरकार ने अगर ये तय किया कि हम सभी किसानों को किसान सम्मान निधि देंगे, तो 10 करोड़ लोगों को मिल गया।
सरकार ने तय किया कि अगर हम गरीबों के खाते खोलेंगे तो 2019 में 25 करोड़ के खाते खुल गए। और इसलिए लोगों को लगा कि सरकार ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से लास्ट माइल डिलीवरी को डिलीवर कर सकती है। हिंदुस्तान में वो चीज खत्म हो गई जब लोग कहा करते थे कि 100 रुपए में से 85 रुपया दिल्ली में रुक जाता है। लोगों को लगने लगा कि अब हम उस सिस्टम में आए हैं कि 100 रुपया भेजा जाता है तो सीधा खाते में पहुंचता है, बीच में कोई पटवारी नहीं है, तहसीलदार नहीं है, कोई नहीं। ये जो जनधन, आधार और मोबाइल की जो त्रिवेणी है, इसने देश में नया ट्रांसफॉर्मेशन। और इसलिए 2019 के बाद अगर आप देखेंगे तो 2019 के बाद दुनिया कोविड के संकट में आई। एक समय हम पोलियो से लेकर सब डिजीज के लिए दुनिया के सामने हाथ फैला करके देखा करते थे, लेकिन आप ये देखिए कि कोविड जैसे संकट में पूरे देश को अनुशासन में बांधना, और उसके बाद हमारा साइंटिफिक एडवांसमेंट इतना तो हुआ ही है कि हमारी जो कोविड का वैक्सीनेशन है उसको दुनिया ने मान्यता दी है, तभी तो हम लगा सके, तभी तो हमारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमने प्राप्त किया ही है। तो अपना सेल्फ वैक्सीनेशन बनाना, उसका उत्पादन करना और 200 करोड़ लोगों का टारगेटेड टाइम में वैक्सीनेशन करना, ये वही सरकार कर सकती है जो ट्रांसपेरेंसी की सरकार। और ये जो बड़ा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली में है लोगों का, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कर सकती है। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि क्योंकि मैं उत्तराखंड से आती हूँ, जैसा संजीव जी ने बताया, पहाड़ों में महिलाओं से संपर्क है, ड्री पहाड़ में है, गांव में है। ये जो विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर शिफ्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का, ये इसने जो विमेन वोटर्स हैं, ये एक अलग तरीके का वोट बैंक कह लीजिए उसको या सपोर्ट कह लीजिए, इसको क्रिएट किया है। इसको ये एक ऐसा शिफ्ट है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिखाई देता है, और महिलाएं जो किसी भी उम्र की हैं उनका सपोर्ट बीजेपी के साथ बहुत होता है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड इलेक्शन में ऐसी करीब 45 से के करीब ऐसी सीट थी जहां पर कि महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग की थी, और वो ज़्यादा वोटिंग वाली जो सीट थी वो बीजेपी को मिली। तो ऐसा जो ये एक कैलकुलेशन आता है, वो कौन सा ऐसा एरिया था जिसको सीधे एड्रेस किया गया, क्योंकि विमेन डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट ये तो हर सरकार की प्रायोरिटी में रहता है, लेकिन एक आपने टेक्नोलॉजी बताया, उससे करप्शन को बहुत हद तक एड्रेस किया गया। बहुत छोटे दुकानदार भी अपना पेटीएम आज हमें बता देते हैं कि आप कैश मत दीजिए, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पूरा इंडिया डिजिटल हो जाएगा, तो लोगों ने कहा था वो पॉसिबल नहीं है, लाइट नहीं है, ये नहीं है। तो एक नेगेटिविटी को हटाने का काम भी किया और उसको कर दिखाया, और हम सब लोग आज डिजिटल पेमेंट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन ये जो विमेन वाला एंगल है सर, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि ये एक वोटर और एक बड़े लेवल का सपोर्ट ये मोदी जी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शिफ्ट होता हुआ दिखता है हर बार। मैं एक और बड़ा विषय आपके सामने रखूंगा। आपको दुनिया भर के फेमिनिज्म के आंदोलनों का अध्ययन करना चाहिए, और एक समय मैंने भी सिमोन दी ब्यूवार को, उनका द सेकंड सेक्स बुक, इसको बहुत पढ़ा। वो फेमिनिज्म का एक आइडियल माना जाता है, लेकिन भारत के जो हमारे वुमेन लेड मूवमेंट है, उनको जैसा स्थान मिलना था वो नहीं मिला। अगर आप हिमाचल की किंकरी देवी और उत्तराखंड की गौरा देवी को करेंगे तो वो आंदोलन केवल वुमेन के लिए नहीं है, पूरी प्रकृति को बचाने के लिए वो, लेकिन जो उसको रिकॉग्निशन मिलना था वो नहीं। दूर दराज के गांव में जो आंदोलन चले, वो महिलाओं ने कहा हम जैसे भी रह लेंगे, लेकिन समाज को नशे से बचाना चाहिए। उस आंदोलन को जो रिकॉग्निशन मिलना था वो उतना नहीं। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र में जो वुमेन है
मैं अब भी मानता हूँ, मैं खुद भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, ये अलग है आप पहाड़ से मैदान से, लेकिन आज भी इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए महिला सबसे ज्यादा मेहनत करती है और शारीरिक श्रम कोई पुरुष से कम नहीं करती। ये मैं अब भी मानता हूँ कि हिंदुस्तान में जो सबसे कठिन काम के क्षेत्र है वहाँ भी अभी भी महिला वर्करों की उपस्थिति सबसे ज्यादा है। मैं श्रम मंत्री के नाते पिछले 2 साल से सबसे ज्यादा जो हेल्थ चेकअप कैंप कराता हूँ वो हमारी भट्टा इंडस्ट्री और बीड़ी इंडस्ट्री की महिलाओं को कराता हूँ। वो जो हजारडेस कंडीशन में काम करते, कई बार हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन वो बहुत कठिन श्रम के काम होते हैं। इवन निर्माण क्षेत्र में भी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में आपको काम करते हैं। तो उसमें 2-3 विषय हुए हैं। पहला, जो सरकार ने मुद्रा योजना जो शुरू करी, अगर आप देखेंगे मुद्रा के डेटा उठा करके कोई भी बात कर ले, लगभग 60 से 70% महिलाओं को ही लोन मिले। तो जो नीचे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए जो माइक्रो फाइनेंस चाहिए था वो सरकार ने दे दिया। उसको अगर 50,000 60,000 रुपये मिलता है, उसको अगर हमारे हरियाणा में तो एक भैंस आ जाती है तो उसका एक जीवन का क्रम शुरू होता है। दूसरा, ये जो जनधन खाते हैं, जनधन खाते ने एक बहुत बड़ा देश में परिवर्तन लाया है इंक्लूसिवनेस के नाम। इसलिए कोविड जैसे संकट के समय में भी जो महिलाओं के खातों में जो हम लोगों ने एम्पावरमेंट किया, उसने एक बड़ा काम किया। और सरकार ने इस बार के बजट में भी 81 लाख महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को आधार बना के अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे लगता है कि अगर हम गांव तक की जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के विषयों को अगर हम पारदर्शी तरीके से नीचे ले जाए और उसके साथ साथ वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ना, कार्यबलों में वुमेन का बढ़ना, हमारे श्रम मंत्रालय ने भी कार्यबलों में वुमेन के महिलाओं के ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को दिखाया है और एक समाज के विभिन्न वर्गों में कॉन्फिडेंस लाने का काम किया। अब हम देखते हैं 26 जनवरी की परेड में ट्रुप को कमांड हमारी लड़कियां करती हैं, बड़े एडवेंचर काम हमारी लड़कियां करती हैं और जो क्षेत्र कभी खुले नहीं थे, मैंने पिछली बार लेबर अवार्ड में सम्मानित किया था ओपन कास्ट माइनिंग, जहाँ कोई जाया नहीं करते थे, वहाँ पे लड़के लड़के, मैं तो इतना कई बार मैं नाम भी ले सकता हूँ कि जो फॉरेस्ट में जो फील्ड ऑफिसर की जो ड्यूटी है वो हमारी महिला फील्ड ऑफिसर बहुत मतलब बढ़िया तरीके से फॉरेस्ट के अंदर भी जब जाएंगी, साथ जाएंगी, तो उनकी कोई कैपेबिलिटी कम नहीं होती। और अभी जो हमारे जो प्रोजेक्ट चीता चल रहा है उसमें 4 हमारी जो 4-5 यंग साइंटिस्ट हैं वो 24 घंटे जंगल में रहती हैं, सुबह भी जाती हैं, शाम को भी जाती हैं। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये तो मेरा अपना अनुभव एज ए फॉरेस्ट मिनिस्टर है, मेरा अनुभव एज ए लेबर मिनिस्टर है, मेरा अनुभव ऐसे सरकार के द्वारा इंक्लूजन करने का है, लेकिन मेरा ये भी कहना होगा कि ये जो हिंदुस्तान की महिला जब आंदोलन करती है तो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं करती, प्रकृति और समाज के लिए करती है। ये विषय छूटा है इसको आगे, इसलिए आप कभी आशापूर्णा देवी ने एक 3 जनरेशन पे किताब लिखी है, प्रथम प्रतिश्रुति, स्वर्णलता और बापू। कभी हम उसको पढ़ेंगे और वो घर में रहकर भी किस प्रकार से गांधी जी के जो अंग्रेजी का कपड़ों की होली जलाने का कार्यक्रम है उसमें वो पात्र आता है। तो 1890 से भी भारत की महिलाओं की भूमिका रही है कि उन्होंने अपने स्वार्थ से ज्यादा देश को समझा, और इसलिए जब सुभाष बाबू के भी हम देखते हैं तो महिलाओं ने अपने गहने सबसे पहले आजादी में कोशिश की, लेकिन हमने इसको जिस तरीके से राइट अप लेना चाहिए, जिस तरीके से इसका रिकॉग्नाइजेशन करना चाहिए, जिस तरीके से इसको हमारे पीएचडी के विषयों में लाना, तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से दुनिया में महिला आंदोलन को संबोधित कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक इट्स बीन एब्सोल्युटली वंडरफुल। और जो पॉइंट्स ऑनरेबल मिनिस्टर ने बताया, स्पेशली कि कैसे इको फेमिनिज्म तो वो कहते हैं, लेकिन यहाँ पे फेमिनिस्ट मूवमेंट ने या महिला मूवमेंट ने एब्सोल्युटली गौरा देवी जी ने जो किया। और अब आई लाइक टू ओपन अप फर्स्ट ऑफ ऑल एक जरा ये जस्ट टेक द माइक अराउंड फर्स्ट अरुण।
मिनिस्टर साहब, आपने तो देखी है द राइज ऑफ बीजेपी, दो छोटे छोटे सवाल हैं द राइज ऑफ बीजेपी को लेकर ही है। क्या कारण है कि साउथ में एक्सपेक्टेड राइज बीजेपी का नहीं हो पा रहा है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि मैं देखता था कि नॉर्थ ईस्ट में आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ क्लियर डोमिनेशन ऑफ बीजेपी जो आज है, लेकिन साउथ में आई वाज एक्सपेक्टिंग मच मोर कि आपका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, लेकिन अभी तक देखा नहीं है। और छोटा एक दूसरा सा सवाल है, क्या राइज ऑफ बीजेपी हैज पीक्ड नाउ और इज इट गोइंग टू कंटिन्यू इन योर ओपिनियन? सर इसी में एक है कि आप बीकानेर से आते हैं, तो राजस्थान में अगले साल इलेक्शन होंगे, तो वहाँ के लिए आपके क्या फोकस है? देखिए, पहला तो ये सच है कि जितना भारत के बाकी क्षेत्रों में विकास हुआ है, उतना साउथ में अभी हमारी और विकास की संभावनाएं अभी बाकी है। उसमें एक तो वहाँ का पॉलिटिकल कोलेशन इस प्रकार का है कि एक पर्टिकुलर कोलेशन में पार्टियां बंधी हुई हैं, वोटर्स बंधी हैं। लेकिन हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से जाएंगे और उसके कारणों का भी विश्लेषण पार्टी कर रही है। और इसलिए अगर आपने देखा है कि हमारा वोट शेयर तमिलनाडु में बढ़ा है, केरल में भी हमने थोड़ा करा, लेकिन पिछली बार तेलंगाना में हमारी सीटें आई। ये सच है, इस बार कर्नाटक में हमारी सरकार थी जो गई है, उसको हम स्वीकार भी करते हैं। हम कोई सब अच्छा स्वीकार करें ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारे और सब विकास की संभावनाएं हैं वो हम करेंगे। और दूसरा विषय है कि बीजेपी का पीक इसलिए नहीं आया है क्योंकि भारत का पीक नहीं आया। अमृतकाल का भारत बीजेपी का पीक है। बीजेपी अपने लिए पीक महसूस नहीं करती। इधर जब भारत का पीक होगा तो बीजेपी का पीक होगा, क्योंकि बीजेपी भारत के लिए काम करती है और भारत को आगे बढ़ाने की बीजेपी करना चाहिए। राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी और मैं आकर के आपसे बधाई भी Yes. Next. Yes, Simran. So you talk about how BJP is a reformist and progressive party, which is away from family-branded political parties. What took so long for the leadership to reimbibe this fact and distance itself from Shiromani Akali Dal, which is the longest alive of BJP? So one part of the question. Secondly, spiritual awakening is significant and an alignment in bringing society together, which BJP and fundamentally the right Sikh Soch speak about. I understand Sanatan and Sikhi are the sides of the same coin, or I can say that Sikhi was the much needed reform of the Hindustan. The coexistence principle which BJP ardently follows, and Sikhs with Sahi Sikh Soch who practice Sanjivalta or the common ways. So where is the ruling party failing to deliver this to the last man in Punjab ideologically, and why BJP is still struggling to gain ground in Punjab, sir? I would like to add one question. Why the BJP's allies are drifting away from the party? This is why. Shiv Sena, Bihar, you think, all over the country, they are moving away from the BJP. सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमने कभी किसी को नहीं छोड़ा। आप ये बताइए कि पार्लियामेंट में विषय चल रहा था और हम लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाद में टीवी पर आकर इसको विड्रॉ भी किया, पर आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद ऑल द स्टेकहोल्डर्स, तो बीजेपी ने तो शिरोमणि अकाली दल को नहीं छोड़ा, उन्होंने ही छोड़ा। कहाँ छोड़ा बीजेपी? और हम मानते हैं कि बादल साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन किसानों के लिए बहुत बड़ा, उनको भी बादल साहब का राष्ट्रीय शोक भी हम लोगों ने, तो बीजेपी ने कभी कहीं छोड़ा नहीं। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आप डेटा उठा करके देखिए, जितनी सीटें शिवसेना ने लड़ी और जितनी बीजेपी ने लड़ी, बीजेपी ने ज्यादा जीती। लोग ये चाहते थे कि बीजेपी की सरकार बने और इसलिए फिर शिवसेना को जिताया। तो जब हम पहले शिवसेना के साथ मिलके लड़े थे तो शिवसेना ने हमें सपोर्ट नहीं किया, वो एनसीपी के साथ चले गए। हमने कब मना किया? बिहार का आप देखिए,
बिहार में 76 सीटें बीजेपी की आई और 47 जनता जेडीयू की आई। फिर भी चूंकि हमने चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री घोषित कर रहा था, तो हमने तो उन्हें बनाया अपनी 76 सीटें होने के बाद, छोड़ा तो उन्होंने। और हमारा ये मानना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हमने अपने आप को जनता पार्टी में मर्ज किया, बाद में जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता का विषय है। हम पूरे भारत की के लोकतांत्रिक प्रोसेस में अपने तरीके से चल रहे हैं। और राजनीति में ऐसा हुआ है कि जो लोग हमारे पे आरोप लगा के गए, बाद में हमारे कोलिशन में आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को छोड़ने का काम नहीं करती। बल्कि प्रधानमंत्री जी ने जब 2019 में ये अपने वापिस से जब आए, और हमारे जब पहली बार में भी पूरे सांसद आए और दूसरी बार में तो 303 आए, फिर भी हमारे सहयोगी दलों वालों को मंत्रिमंडल में हमेशा इस तालीम के हमारा मानना है कि नेशनल एम्बिशन और रीजनल एस्पिरेशन, इन दोनों को मिलाकर ही देश चलता है। इसी को नारा कहते हैं। उन्होंने नारा वर्ड कहा था, नेशनल एम्बिशन एंड रीजनल एस्पिरेशन। तो आज तो एनडीए को 25 साल पूरे हो गए। इतना बड़ा कोई भी ऐसा कोलेशन जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया, उसी ने 25 साल पूरे किए। वरना तो यूपीए कब आया और कब गया किसी को पता नहीं। कितने कोलेशन बने, एनडीए खड़ा हुआ है। जो गए वो अपना आप गए, हमने किसी को नहीं खाया। हमने तो मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, रखा ही है। जो गए उनसे पूछो ना, आपके 47 एमएलए थे, बीजेपी के 77 थे, बीजेपी ने आपको सीएम बनाया, आप क्यों गए? और आप उनके लिए गए जिनको कल तक आप गाली दिया करते थे। तो आपने वोट तो उनके खिलाफ लिया और सरकार उनके साथ बनाई। वो पंजाब का एक सवाल पूछा, पंजाब का उन्होंने पूछा था स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ ही होता है कि हर एक आदमी को अपने अपने तरीके से अपने आस्था और विश्वास पे काम करना है। ये हमारी भारत की परंपरा है। और रियलाइजेशन सबका एक तरीके से हो जाएगा ऐसा भारत नहीं है। क्योंकि ये चीज स्पिरिचुअलिज्म की चीज रियलाइजेशन से जुड़ी है। वो अनुभूति है कि अपने अपने स्तर हो, किसी को भक्ति से होगा, किसी को पूजा से होगा, किसी को किसी थॉट प्रोसेस से होगा, किसी को भजन से होगा। और ये रैशनलाइजेशन होना भी चाहिए। और अल्टीमेटली स्पिरिचुअलाइजेशन का अर्थ मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो भी धरती का एग्जिस्टेंस है, ये केवल ह्यूमन बीइंग का नहीं है, ये पूरे नेचर का एग्जिस्टेंस है। वननेस विद नेचर इज स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ है। और इसमें सब लोग अलग अलग हो सकते हैं। और हमारे सिख गुरुओं का तो बहुत बड़ा भक्ति के लिए, कंपैशन के लिए, जीवन मूल्यों के लिए, समाज के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए बड़ी एक परंपरा रही है, हमारे आदर्श रहे हैं। और बाकी भी अलग अलग सेक्टर में जो अपने अपने तरीके से रहे हैं, इसको हम पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं। और हमारा मानना है केवल पॉलिटिकल फिलॉसफी विदाउट एथिक्स और मॉरलिटी के पॉलिटिक्स को आप अचीव नहीं कर सकते। आप मैकियावेली की पॉलिटिक्स को पा सकते हो, आप कृष्ण की नीति को नहीं पा सकते। तो नीति के लिए आपको मॉरलिटी चाहिए, मॉरलिटी और स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको रियलाइजेशन चाहिए। वो स्पिरिचुअलिटी का आधार है, वो एक नहीं हो सकता, अनेकों तरीके से है। जैसे दो नदियाँ अलग अलग तरीके से एक समुद्र में जाती है, वैसे ही एक पहाड़ की चोटी पे कोई एक आदमी 3 रास्तों से नहीं चढ़ सकता है, एक ही रास्ते से चढ़ सकता है। तो जिसका जो फेथ है उससे वो ऊपर पहुंचे, हम तो उसको मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं। Yes, Srishti. Thank you. 1 second. We will pass the mic now. Srishti, say. Thank you, sir. Such a good fortune to have you here amidst us today. Sir, पाकिस्तानी हिंदुओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन था राजस्थान में, जो कि एक हमारा डर फ्रंटियर माना जाता है और
बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत हम लोग ने देखा है कि ये जो नोमैडिक थे पहले, थारी लोग भी बोलते थे इनको, आज हम इन्हें पाकिस्तानी हिंदू बोल रहे हैं। तो CAA जब आया तो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन इन्हीं कम्युनिटी मेंबर्स ने की, क्योंकि इन्हें अपनाया हम लोगों ने, और रेगुलेशन की भी हम वेट कर रहे हैं। इसके कनेक्शन में सर मैं मानती हूँ कि जो करतारपुर कॉरिडोर आया है रिलीजियस टूरिज्म के अंदर, वैसा ही एक कनेक्शन, क्योंकि अब जो ट्रेन थी जो कनेक्ट करती थी उन लोगों को वापस जाने के लिए या आने के लिए, 2019 में वो रोकी गई थी। तो उसके अंदर ये है कि ये पिलग्रिमेज वीज़ाज और टूरिस्ट वीज़ाज लेके आते हैं, और एक अपना सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो बॉर्डर के इस पार है। सो एक कंप्लीट असिमिलेशन सोसाइटी में इनका अगर हम देखना चाहें तो आपकी ओपिनियन में या आपके एक्सप्रेशन में सर, एक रिलीजियस कॉरिडोर राजस्थान में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि बीजेपी पार्टी के मैनिफेस्टो में था जो CAB और CAA आया, एंड आई रिमेम्बर फील्ड वर्क में 2012 से ही ये लोग वेट कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा खुशी इन्हीं को हुई थी। ये जो विजन एक्सपैंड करें, इन योर ओपिनियन सर? राजस्थान में बॉर्डर पे जो है वो सोडा राजपूत है जी। उस तरफ सोडा है, इस तरफ भाटी राजपूत है, उनके आपस में रिश्ते वगैरह है। उसके अतिरिक्त हमारी भील आदि छोटी कम्युनिटी के लोग भी हैं, वो लोग राजस्थान के बॉर्डर पे हैं। और जो लोग शरणार्थी बन करके आए हैं उनको भारत सरकार ने पूरी जो दी है बॉर्डर पे उनकी गिनती वगैरह है, और पाकिस्तान की जो स्थिति है उसमें वहाँ पर जो हिंदू हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो उन सब लोगों को, ऐसे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जो हिंदू हो सकते हैं, सिख हैं, हमारे अफगानिस्तान से सिख भाई पूरे आए थे, बौद्ध लोग भी हैं, क्योंकि पूरा अफगानिस्तान में तो एक समय से सारा प्रोटोकॉल को तोड़ ही दिया है। तो इन सब लोगों के लिए ये जो CA लाया है, सरकार इसको पूरी तरीके से कार्रवाई करके उनको प्रोटेक्ट करे। Sir, would you like to comment on the developments in Pakistan? मैं बुक पे राष्ट्रीय स्तर पे बोल रहा हूँ, Okay, Arun. Yeah, Masjid Brother, I wanted to know कि जैसे कई इनिशिएटिव्स लिए सरकार ने, CAA का भी अनाउंसमेंट हुआ लेकिन आगे प्रोग्रेस अभी कमी हुई है। इसी तरह से फार्म बिल आया था, which was in my opinion very much in interest of the farmers, but under pressure for so many reasons it was taken back. So can we see something similar step coming in the farmers in near future again, and CA when it will be actually implemented? CA के लिए सरकार के अंतर्गत कार्रवाई चल रही है, लेकिन सरकार ने फार्म बिल वापस ले लिया है। हमारी सबसे बड़ा लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी कैसी हो, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी तुरंत कोई फार्म बिल का विषय नहीं। Any volunteers? A very good evening, sir. So my question is, as we read, we can see that the ideologies of BJP were shaped by the RSS ideas and the Dravidian nationalism in the earlier days. So does BJP follow those ideologies still, or have they evolved over the time? Thank you. Dravidian nationalism का तो BJP से कोई लेना देना नहीं। Sir, it was mentioned over there in the first chapter. Where? In the first chapter. No, what has been mentioned is that the Congress broke up, and when the Congress broke up, it split into many parties, and in the south, Annadurai started Dravidian movement. So I think that's where. So, but I think the main question is about the RSS. RSS is there. So what is wrong in ideology? Sir, basically, I read an article by Guruji Golwalkar in which he stated that the students are the pillar. The students are not the pillars of this nation; they are its servants. So I wanted. Never noticed. Yes, sir. There is an article. You show me. Send us a link. ऐसा कभी नहीं है। So there is an article. Please It show me. stated. You note down my email address. Sure. Please note down. Bhupendra Yadav 69@gmail.com. Sir, please repeat. Bhupendra Yadav 69 @gmail.com. @gmail.com. I'll surely get that. Please. Sir, actually, it was in one of the sessions at Gujarat School of Social Sciences. मैं I आपको think मैं अभी tell you. Don't worry. बच्चों पे बहस नहीं हो सकती। सबसे पहले तो गुरुजी ने कोई जो किताब है वो लिखी है।
एक बुक का उन्होंने एडिट किया था, दैट इज अ बंच ऑफ फ्लावर्स, और उसके बाद हम लोगों ने गुरुजी समुद्र करके एक पूरा 10 वॉल्यूम का बनाया, और 10 वॉल्यूम का जब हमने बनाया है उस पूरे में हमने कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं कही कि वो देश के सर्वेंट है, कभी नहीं कहा। और मैं ये मानता हूँ और मैं इसको बहुत विश्वास के साथ स्वीकार करता हूँ कि वो अपने आप में एक स्पिरिचुअल पुरुष थे। उनका जीवन बहुत डेडिकेटेड था। उन्होंने MSc जूलॉजी में भी लॉ करा था, और नेशन बिल्डिंग के लिए उन्होंने पूरे देश में लगभग 32 साल तक यात्रा की। और आज़ादी के बाद वो एक ऐसे महापुरुष थे जिनके विचार और आइडियोलॉजी पे लोगों ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया। उनको एक सही कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, और मैं गुरुजी जो समझ है उस पर आपसे चर्चा करना चाहिए। One question. और ओपननेस के साथ। Let's see, there are no other questions. It's a very interesting question. हाँ हाँ पूछो। Can I? Let's एक मिनट थोड़ा अगर yes बेटा। Good evening, sir. So my question is, how did the BJP's rise to power affect India's relationship with Pakistan and China? कोई भी सरकार आएगी तो वो कंसिस्टेंसी के साथ अपनी नीतियों को लेकर के काम करती है, लेकिन बीजेपी के आने के बाद चाहे डोकलाम का इशू हो और चाहे हमारे देश पे पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकवाद का विषय हो, हमने बड़ी मजबूती के साथ उनको जवाब दिया है। बीजेपी के लिए भारत की सुरक्षा प्रथम विषय है। Yes, sir. Yes. Well, like opposition parties have been for a very long time they have been saying that BJP and RSS they are big liars. They have been saying they say अपोजिशन वाले हमें अच्छा no, कैसे this is कहेंगे? my question. My question is, but I have seen that BJP never tried to contradict this. Why? I have never seen anywhere there. Be Mr. Modi, Advani, Vajpayee, never they denied this fact that they lied. But Congress, I have seen that Rahul Gandhi, several rallies, they saying that BJP and RSS they lie so much that they become truth. तो जनता ने जवाब दे दिया। No, that is okay, but why they don't contradict? My question is जनता ने जवाब दे दिया। हमारा काम है काम करना, और इसलिए हमारा काम है भारत को पीक पे पहुंचाना। तो हम अपना काम पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं। ठीक। Yes, we have time for just one or two more questions. Satish. मिनिस्टर सर, ये आपकी किताब पर बहुत अच्छी चर्चा हुई आज। आपका उत्तराखंड का जो विजिट है उसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो WII की आज हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग थी, और जनरल बॉडी की मीटिंग में जो देहरादून में हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इसको एक साइकॉन इंस्टीट्यूट को भी इसमें लॉन्च किया है। तो इसको वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने आज जनरल बॉडी की मीटिंग करी है। हमारे राजा जी नेशनल पार्क में टाइगर इसको पहले छोड़ा जाएगा, ताकि हम उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं। वहाँ के जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज हैं उसको हम करेंगे। हमारे देश में जो एक्सपोर्टर थे, जो पश्मीना के और जो शॉल वगैरह एक्सपोर्ट करते थे, तो जब वो एक्सपोर्ट करने के लिए जाते थे तो उनके कंटेनर को रोक दिया जाता था कि उसमें वो जंगली शातूस हो सकता है। तो हम प्री सर्टिफिकेशन करके WII से पहले से दे देंगे, ताकि लेने वाले को भी रहेगा कि ये सर्टिफाइड है, और देखने वाले को भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ये देश के हमारे विशेष रूप से जो शातूस के जो शॉल के जो लोग हैं, ट्रेड है, उसको एक तरीके से एक प्री एक्टिव तरीके से सपोर्ट देगा। इसको लेकर के भी हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। बाद में फॉरेस्ट मैनेजमेंट और बाकी विषयों को So very glad that the two very great institutions, the FRI and WII, are here, which means that you will keep coming, which means that we will get the opportunity of interacting with you again, because आज जिस तरीके से एक बहुत ही जिसको कहा जा सके वंडरफुल संवाद जो आज इस वाव कैफे में हो, उसके लिए वेरी ग्रेटफुल टू यू। एंड जो पॉइंट्स जो खास तौर पे जो एक पॉइंट जो आई थिंक द की टेक अवे कि संघर्ष नहीं, हमें विमर्श चाहिए। That movement that we must deal with, that nobody is an enemy,
that there could be differences of opinion, but differences of opinion does not mean enmity. And the Lakshya of India, Bharat ka Lakshya, Desh ka Lakshya, that is the main thing, that is the main consideration. I think we can all give a round of applause for I request our volunteers to bring the memorabilia, and I'm don't worry. The books are on display here, and after you just present the your last question. Yeah. Like him, please. Yeah, Roberto. What impact did the Arizona dispute have on BJP's rise? एक बहुत अच्छा प्रश्न और हमारे सिविलाइजेशन में हम लोग एक लंबे सोशल टेंशन के साथ 500 साल से जी रहे हैं। तो हमने एक ऐसे शासन की शुरुआत करी है जहाँ 500 साल पुराने सामाजिक तनाव को न्यायिक रास्ते से और सद्भाव के रास्ते से हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। और आपको ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, मतलब चाहे फिलिस्तीन का झगड़ा हो, चाहे यरूशलेम के, चाहे बाकी के दुनिया के धार्मिक जगहों के विषय, एक सामाजिक तनाव के विषय को न्यायिक रास्ते से सॉल्व करना है, ये सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी ने जो विषय उठाया था वो देश में सूडो सेक्युलरिज्म का विषय उठाया। आप दो चीजों की एक साथ तुलना नहीं कर सकते। किसी मूल धार्मिक विषय और थोपे गए विषय को आपको अलग अलग करके देखना है। लोग ये कहते थे कि इसके लिए कोई न्यायिक साक्ष्य होना चाहिए, कोई न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए, कोई अदालत की प्रक्रिया होनी चाहिए, एविडेंस का एग्जामिनेशन होना चाहिए और प्रॉपर प्रोसेस को सॉल्व करना चाहिए। तो मुझे लगता है इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके देश में परमानेंट एक सामाजिक तनाव को हमने समाप्त किया। ये बीजेपी की Yes. Yes, Maria. Yes. Yes. It's a discussion partly. I hope not. What you say is so true, but I feel it's mainly Hindus who has this mindset. The mindset of Hindus is very different from Western mindset or Abrahamic religions mindset. So how can this be enlarged and not enlarged? And when Western media, how they put always Hindu fundamentalists, Hindu nationalists in front of BJP, in front of Modi, they even call it fascist. And they claim, even though they know it's not true, it cannot be so stupid. But they claim that Muslims are under attack in India. Now even Erdogan, he's on Twitter, there's a video where he says Muslims are killed in Hindustan, and it's Hindus who do it. It's very dangerous, I find, because I don't know what you said, it makes so much sense. That's why I am so happy to be in India, because Hindu Dharma makes sense. I was facing Christianity, but how can we herald that Christians, Muslims, they realize also that the essence is here, and You know, the Hinduism is not like a particular sect believes in one book and one thing. I already said the meaning of the spirituality is the realization. There may be different ways. Even we have a different type of social and philosophical schools also.
And our philosophical school believes in a different philosophy also. Like our Nyaya and Vaisheshik Darshan, they are more about the materialistic one and solve the problem through the way of logic. Our Yoga and Sankhya Darshan believe in the emerging of the this one from the Prakriti and Purush, and the Vedanta says it's only the Maya, nothing more than that. So we have a different type of philosophical opinion also. Even the other sects also have their own opinion, but sometimes the Abrahamic religion, what you said, they believe in a one group, one particular thing, one particular way of thinking also. As an environment minister, I recently, a week before, I had an opportunity to read one Norwegian philosopher, Arne Næss, and he started this deep ecological movement also. They feel that the whole West, because of this Abrahamic religion feeling, they think that the development of the world, they develop on the basis of the anthropocentric philosophy. Now West comes from anthropocentric to biocentric. Now they come to the deep ecological concept, where we say the Prakriti Rakshita Rakshita. If we protect the nature, nature protects us. If there fundamental change with the nature also, I think there may be a differences of opinion, but after all religion giving one thing, that's a moral way of living. Question how we will live, how we will live the nature, how we will got the real realization in our way of life with our faith. But if any faith is strict with their own principle and they are not ready to accept the views of the others, that's the thing which called a fundamentalism. I think we don't have that type of fundamentalist mindset. Today they are not with us. Maybe tomorrow they realize. But we are working by our own philosophy. That's the only. Okay, there are. One only one. It's fast. Yes, ma'am. And then last Simran, and after that, that's it. Yes, ma'am. Thank you so much. I absolutely believe in. I'm very happy with Hinduism, Hindu health. पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि why are we becoming evangelical in Hinduism? मतलब हमारे संस्कृति में तो ये नहीं है कि आप लोगों को कन्वर्ट करिए तो आपकी जगह है. ये बहुत मतलब ये बहुत हमारा बड़ा पैसिफिस्ट रिलीजन है. We are not interested कि भाई तुम हिंदू मतलब कैसे आप उसको हिंदू बनते हो क्या. तो अब मुझे मतलब इसमें बड़ी कॉन्फ्लिक्ट लगती है कि हम बिल्कुल नारे लगा रहे हैं कि आप बदलिए और आप मतलब ये तो isn't it against the grain of Hinduism? So I feel कि why are we going on that road? Or maybe I'm wrong, maybe we are not going on that road at all. But I want to ask you that why is this emphasis? Because okay, I think Simran, you also asked a question, and anybody else? के बाद तो आया ही नहीं. Questions तो वही था. अच्छा, सिमरन और किसी और को पूछना तो अभी पूछ लीजिए because that's the final comment. Last question, sir. Thank you, sir. सर आप इलेक्शंस जो लड़ते हैं आपकी पार्टी वो गुड गवर्नेंस पे लड़ती है और जब उसका रिजल्ट आपके प्रतिकूल नहीं आता तो आप डिफीट को कैसा लेते हैं और यदि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होते भाजपा के तो आप क्या एक बदलाव करना चाहते हैं सर अपनी पार्टी में इलेक्शन तो पहले आपने इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया. पहला विषय तो हिंदू धर्म कभी दज्जानुसी और वैदिक को भी नहीं. दूसरा हमारे में अलग अलग तरह की पूजा पद्धति विश्वास है और मेरा ये मानना भी है हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी नहीं. और अगर हमने इसको यूनिफॉर्मिटी में डालने की कोशिश करी तो हम हिंदुइज्म को सेव करेंगे. हमारे में अलग अलग विचार होना, अलग अलग फिलोसॉफिकल थिंकिंग होना, उसमें विमर्श होना, विमर्श का अपना तरीका होना
और असहमति रहते हुए भी अल्टीमेटली एक लक्ष्य की ओर जाना, ये ही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। हम कोई परंपराओं से बंध करके जब हम अपने आप को छोटा बांध देते हैं तो हम कई बार पाखंड के शिकार हो जाते हैं। और इसके सबसे ज़्यादा रिफॉर्म हमारे यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे हमारे बड़े प्रकांड जो इतने तपस्वी आदमी थे, उन्होंने मूर्ति पूजा करनी, हमारे को एक अनावश्यक करने के लिए उसके लिए हमको पूरा प्रेरित है। सत्यार्थ प्रकाश अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी ग्रंथ है जिसका हम लोगों के जीवन पे प्रभाव पड़ा है और वेद से लेके बाकी सांस्कृतिक मान्यताओं को उठाने का काम किया। और मीराबाई जैसे लोगों ने, कबीरदास जी ने, गुरु रैदास ने, मैंने जो बताया भक्ति परंपरा में कई तरह की जड़ताओं को तोड़ने का काम किया। तो हम बंध नहीं सकते, हमें बंधना भी नहीं चाहिए। ये बंधना हिंदू तो होता ही नहीं। विराट होना, विराट विमर्श होना, संघर्ष नहीं होना, विमर्श होना और उस पर चलना, ये हमको करना चाहिए। और दूसरा, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता ही हूँ, मेरा कोई ना सपना है ना। ये तो आपका निजी व्यू है। All good मैं तो things. मेरा ही निजी रखूंगा, बीजेपी का कैसे? All good things have to come to an end because सिर्फ एक वक्त ही है जो हमारे लोगों में नहीं है. But I think I'll be echoing everybody's sentiment there that this has been a very wonderful, very frank discussion. Very wonderful and very frank discussion. So,